یہ بھیڑیوں کی آواز اور یہ تیز طوفانی بارش، آدھی رات بیت گئی۔ بلو، گڑیا، کہاں چلے گئے تم دونوں؟ ایسے پریشانی میں رانی گئے اپنے جھونپڑے سے باہر نکل آتی ہے۔ کتنی بار کہا ہے کہ سمے سے گھر آ گیا کرو، اب کہاں ہو گئے تم دونوں؟ کہاں ڈھونڈوں تمہیں؟ ایسے چنتت ہوتے ہوئے طوفانی بارش میں آدھی رات کو رانی گئے نکل پڑتی ہے۔ جنگلی جانوروں کی آواز سنتے اور خطروں سے کھیلتے وہ آگے بڑھتی رہتی ہے۔ بچوں کی کھوج کرتے کرتے رات بیت جاتی ہے اور صبح ہو جاتی ہے۔ رانی گئے ابھی تک بھی بچوں کی کھوج میں لگی ہوئی تھی اور وہ جنگل میں گھوم رہی تھی۔ بھوکھی پیاسی پوری رات سے جنگل میں ڈھونڈتے ہوئے وہ ایک جگہ آ کے رکتی ہے۔ اے اوپر والے، میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوا؟ کہاں چلے گئے میرے بچے؟ رانی پھر سے اپنے بچوں کی کھوج کو نکل پڑتی ہے۔ ارے رانی گئے، کیا ہوا؟ تم اتنے چنتے کیوں ہو؟ کیا بتاؤں ہرن، کل سے میرے بچے گھر نہیں لوٹے۔ نہ جانے کہاں ہوگی میری گڑیا اور کہاں ہوگا میرا بلو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بھیڑیے یا کسی اور درندے کا شکار ہو گئے ہوں۔ تم تو جانتی ہو اس جنگل کو۔ ایسا مت کہو ہرن بھیا، ایسا مت کہو، دعا کرو کہ میرے بچے زندہ ہوں۔ ایسا کہتے ہوئے رانی گئے پھر سے چل پڑتی ہے۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ندی کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ وہ ندی کے اس پار سے اپنے بچوں کو آتا دیکھتی ہے۔ بلو، گڑیا، ماں آپ یہاں؟ تم دونوں کہاں چلے گئے تھے؟ میں کل رات سے پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ دراصل ان کی کوئی غلطی نہیں، رات زیادہ ہو گئی تھی اس لیے میں نے انہیں اپنے گھر پہ ہی روک لیا تھا۔ یہ کل شام کو میرے بچوں سے کھیلنے آئے تھے۔ ہاں ماں، یہ گڈو جو ہے یہ میرا اور بلو کا دوست ہے۔ ٹھیک ہے، مگر شام ہونے سے پہلے گھر لوٹ آیا کرو، ورنہ تمہیں تو پتہ ہے میں کتنی چنتت ہو جاتی ہوں۔ ٹھیک ہے ماں، آئندہ سے جلدی آ گیا کریں گے۔ بچوں کو زندہ دیکھ رانی گائے کی جان میں جان آتی ہے اور وہ گلاب بیل کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ میرے بچوں کی جان بچانے کا بہت بہت دھنیہ واد، میں یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ اس میں شکریہ والی کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ جی جی، پوچھیے، سن رہی ہوں۔ آپ بچوں کو ڈھونڈتے ہوئے خطروں سے کھیلتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہیں، کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ کے پتی اس وقت کہاں ہیں؟ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، ہمیں چھوڑ کے چلے گئے وہ اس دنیا سے۔ معاف کیجیے گا، آپ کو دکھی کرنا کسی طرح بھی میرا مقصد نہیں تھا، معافی چاہتا ہوں۔ سندر ون جنگل میں یوں تو بہت سے پکشی تھے، لیکن اس طوطے کی بات کچھ الگ تھی۔ وہ آدھا لال اور آدھے ہرے رنگ کا طوطا تھا۔ وہ طوطا اتنا سندر تھا کہ سارے ہی پکشی اس سے دوستی کرنا چاہتے تھے۔ ارے طوطے بھائی، کیا تم مجھ سے دوستی کرو گے؟ تم بہت سندر ہو، میں نے آج سے پہلے اتنا سندر طوطا کبھی نہیں دیکھا۔ ارے کبوتر بھائی، آپ کا گھر کدھر ہے؟ میرا گھر تو بہت دور ہے یہاں سے۔ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں اس جنگل میں نیا آیا ہوں اور میں نے ابھی اپنا گھر بھی نہیں بنایا۔ کیا میں آپ کے گھر میں کچھ دن رہ سکتا ہوں؟ ارے ہاں طوطے بھائی، کون سا ایسا پکشی ہوگا جو تم جیسے خوبصورت طوطے سے دوستی نہیں کرنا چاہے گا؟ اتنی موٹی موٹی آنکھیں اور لال لال چونچ، لال اور ہرے رنگ کا کیا کمبینیشن ملا ہے تمہیں؟ آپ کا بہت بہت دھنیہ واد، آپ بھی بہت سندر ہو۔ ایسے کبوتر خوشی خوشی اس طوطے کو اپنے گھر لے آتا ہے۔ وہ طوطے کی خوب سیوا کرتا ہے، اسے طرح طرح کے بھوجن کھانے کو دیتا ہے۔ اس نے تو اسے رہنے کے لیے علیحدہ سے کمرہ دیا تھا۔ خوب ساری سیوا کرنے کے بعد وہ دونوں پتی پتنی اپنے کمرے میں آ جاتے ہیں۔ رات بھی ہو جاتی ہے، وہ دونوں باتیں کر رہے تھے۔ دیکھا پتنی جی، کتنا خوبصورت دوست ہے میرا، پورے جنگل میں اتنا سندر طوطا کسی نے کبھی دیکھا ہوگا کیا؟ میرے دوست کی تو واہ واہ ہو جائے گی۔ جی پتی جی، میں نے تو اپنی پوری زندگی میں اتنا سندر طوطا دیکھا ہی نہیں کبھی۔ کر لو میری تعریفیں کر لو، کچھ دیر میں پتا چلے گا۔ کچھ دیر میں وہ پتی پتنی سو جاتے ہیں اور طوطا تو بیٹھا ساری رات سے جاگ رہا تھا۔ وہ تو چوری کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ سوتے ہیں، طوطا چپکے سے ان کے کمرے میں آتا ہے اور ساتھ پڑی ہوئی الماری کھولتا ہے۔ الماری میں تو اسے ایک سونے کا بہت ہی سندر ہار دکھتا ہے۔ وہ چپکے سے ہار اٹھا لیتا ہے اور وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ صبح بھی ہو جاتی ہے۔
अलमारी खुली देख के वो पति पत्नी समझ जाते हैं कि चोरी हो चुकी है। उनका रोना धोना तो पूरा जंगल सुन रहा था। मैंने उस पे एतबार किया, ये क्या हो गया? आपकी दोस्ती के चक्रों में मेरे दहेज का सबसे कीमती हार चला गया, मेरी माँ का दिया था। इधर तोता तो चोरी करने के बाद रात ही रात दूसरे जंगल में फरार हो जाता है। वो दूसरे जंगल में बैठा होता है कि वहाँ से एक चिड़िया गुजर रही होती है। तोता बैठा उस चिड़िया को आवाज़ लगाता है, अरे अरे चिड़िया बहन इधर आओ। बात ये है चिड़िया बहन, मैं इस जंगल में नया हूँ, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मेरा अपना कोई घर नहीं है, क्या आप मुझे अपने घर में रख लोगी? देखिए तोते भैया, आप बहुत सुंदर तोते हैं, मैं मदद करूंगी आपका घर बनाने में। अगर आप नए आए हैं तो क्या हुआ, मैं और आप मिलके अच्छा सा घर बनाएंगे। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई किस्म का घर नहीं बनाना अपना, मुझे बस आप अपने घर में रहने दीजिए। अरे तोता भैया, मैं किसी अजनबी को अपने घर में नहीं रख सकती, लेकिन मैं आपकी मदद ज़रूर कर सकती हूँ घर बनाने में। तोता रानो चिड़िया को आंखें निकाल के देखता है और वहाँ से उड़ता हुआ चला जाता है। अरे ये तोता इस जंगल में रहना भी चाहता है लेकिन फिर अपना घर भी नहीं बनाता, कहीं ये चोर तो नहीं? नहीं नहीं, मैं भी क्या सोचने लग जाती हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। गौरी कवि तोते के पास आके बैठती है। वाह वाह वाह, क्या सुंदरता दी है ऊपर वाले ने तुम्हें। एक हमारे जंगल का तोता है मोटी चोंच वाला, एक आंख निभाता मुझे, और एक तुम हो, कितने सुंदर हो। मुझे आपकी मदद चाहिए, मैं इस जंगल में नया आया हूँ, क्या आप मुझे अपने घर में रख लेंगी? वैसे आप भी बहुत सुंदर हो, इतनी प्यारी काली कवि मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी, आप दोस्ती करोगी मुझसे? गौरी कवि ने तो पहली बार अपनी इस तरह से तारीफ सुनी थी, वो तो तुरंत ही उसे अपने घर ले आती है। अरे खाओ खाओ तोते भाई, खाओ, पेट भर के खाओ, इतना सुंदर तोते से हमारी दोस्ती हुई है, खाओ। वो दोनों पति पत्नी तोते को बहुत सा भोजन देते हैं, लेकिन तोता वहाँ पर भी चोरी करता है। जैसे ही वो सो जाते हैं तो तोता चोरी करके भागने की कोशिश करता है। वहीं घर के बाहर रानो चिड़िया बैठी होती है। गौरी की पड़ोसन रानो को रात को नींद नहीं आ रही थी। जब वो देखती है कि तोते के पंख में हार होता है सोने का, तो वो तुरंत ही समझ जाती है कि तोता चोरी करके भाग रहा है। रानो चिड़िया शोर मचाती है, चोर चोर चोर, तोता चोर है, तोता चोर है। चिड़िया का शोर सुन के सारा जंगल इकट्ठा हो जाता है। गौरी कवि और कालू कौवा तो बहुत गुस्से में थे, लेकिन चिड़िया पुलिस को बुलवाती है। पुलिस भी आ जाती है। थोड़ी सी मार पड़ने पे तोता सब बता देता है। तोता तो सिर्फ हरे रंग का तोता था, लाल तो उसने रंग किया हुआ था। उसको जेल हो जाती है और वो जेल में ही रहता है। गौरी कवि प्यासी थी और वो पानी पीने नदी के पास जा रही थी। सोचती थी कि इस बुढ़ापे में मेरा साथ कौन देगा, लेकिन देखो ऊपर वाले ने मुझे तुम जैसी बेटी दे दी। मैं तुम्हें पाके बहुत खुश हूँ मेरी बेटी। माँ जी, आपने भी मुझे माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। माँ के जाने के बाद आप ही मेरी माँ बनी हैं। चिड़िया चलो, बहुत प्यास लगी है, चल के पानी पी लेते हैं नदी के पास। फिर बूढ़ी चील और चिड़िया दोनों नदी के पास पानी पीने आ जाते हैं। गौरी कवि वहाँ पहले से बैठी होती है। चील, माँ जी आपको जेब तो नहीं देता इस छोटी जात वाली चिड़िया के साथ दोस्ती करना, ये कोई बात हुई भला? कहाँ आप, कहाँ ये तुम्हारी नज़र में छोटी होगी, मेरी तो ये बेटी है, बेटी। लेकिन चीलें तो पक्षियों का शिकार करती हैं, दोस्ती थोड़ी ना करती हैं। आपकी दोस्ती कैसे हो गई इसके साथ? अरे बेवकूफ़ काली कवि, करती होंगी चीलें शिकार, लेकिन मैं ऐसी चील नहीं हूँ। फिर गौरी कवि हसद और जलन में वहाँ से उड़ती भी चली जाती है। वो उड़ती भी कहीं दूर जाके बैठ जाती है। वहीं पास वाले पेड़ पे दो उल्लू बैठ के बातें कर रहे होते हैं। काम तो मुश्किल है, लेकिन वो चील बुढ़ी हो गई है। अब अगर हम उसको मार दें तो हम पूरे जंगल के राजा बन जाएंगे। गौरी कवि पास के पेड़ पे बैठ के उनकी बातें सुनने लगती है। बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन बात ये है कि उसको मारना आसान थोड़ी ना है। कोई ना कोई योजना तो बनानी होगी हमें इस काम के लिए। अरे वाह, लोहा गरम है, यही मौका है जाके ज़रब मारती हूँ अपनी। फिर गौरी कवि उड़ती हुई उल्लुओं के पास चली जाती है। अरे ओ काली कवि, तुम इतनी बहादुर कहाँ से हो गई? हम उल्लुओं के पास आने से पहले तुम्हें डर नहीं लगा? जब बात ही मैं उल्लुओं के फायदे की करने आई हूँ तो फिर डर कैसा?
अब मेरी बात गौर से सुनो, तुम चील को मारना चाहते हो, मैंने सब सुन लिया है। मैं इस काम में तुम्हारी बहुत अच्छी मदद कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, चील को मारना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। सबसे पहले तुम्हें इस काम के लिए चिड़िया को खत्म करना होगा। वो छोटी चिड़िया है नहीं, रानो चिड़िया, वो चील की बेटी बनी हुई है और वही ही उसकी कमर है। अगर तुम उसको मार दो तो चील की कमर टूट गई। हाँ तो फिर ठीक है, तुम उस चिड़िया को हमारे पास ले आना, हम उसे यहीं खत्म कर देंगे। तो बस ठीक है, फिर तैयार रहना, कल सुबह ही मैं चिड़िया को किसी बहाने से तुम्हारे पास लेके आऊंगी और तुम यहीं पर ही इंतजार करना। ऐसा कहते हुए गौरी कवि खुशी खुशी वहां से अपने घर लौट जाती है। अरे क्या बात है पत्नी जी, आज आप बहुत खुश दिखाई दे रही हो और बड़ा टाइम लगा के आई हो, कहाँ थी? हाँ हाँ, खुश हूँ, खुशी से नाचूंगी मैं तो। अब मेरी चिड़िया दुश्मन खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। बस आज अब उस रानो चिड़िया का काम तमाम हो जाएगा। हाँ, उसके बाद हमारी सबसे बड़ी रुकावट आगे से हट जाएगी। नीचे बैठा मिठू तोता अमरूद खा रहा था, वो ये सारी बातें सुन रहा होता है। मुझे चिड़िया को बताना होगा, मुझे अभी जाके सब बताना होगा, ये लोग चिड़िया को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। बिना देरी करते हुए मिठू तोता वहाँ से उड़ जाता है और वो चिड़िया के पास आके बैठ जाता है। चिड़िया जल्दी से चली जाओ, मैंने ये सब अपने कानों से सुना है। लेकिन मिठू भैया, मैंने उन उल्लुओं का क्या बिगाड़ा है, मेरा क्या कसूर है? ये सब तो मैं नहीं जानता। चिड़िया जिंदा बच गई तो सोच लेना सब कुछ, अब जाओ दूसरे जंगल। फिर चिड़िया सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी माँ के जंगल चली जाती है। वो अपनी माँ के घर रहने लगती है। आखिर मैंने उनका क्या बिगाड़ा है, क्यों मारना चाहते हैं वो मुझे? रानो, कहाँ चली गई तुम? मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ मेरी बच्ची, मेरे पास आओ। कहाँ ढूंढूं तुम्हें अब मैं इस उम्र में? कहाँ चली गई? शाम हो गई और अभी तक तुम नहीं आई। सबसे पूछ लिया, किसी को भी नहीं मालूम कि वो चिड़िया कहाँ चली गई। वो उल्लू मुझे नहीं छोड़ेंगे। गौरी कवि यही सोच रही होती है कि वहाँ उल्लू आ जाते हैं। कहाँ गई है रानो चिड़िया? तुमने तो कहा था मैं रानो चिड़िया को तुम्हारे पास लेके आऊंगी। उल्लू जी, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ चली गई। सुबह से अब तक मैं उसको ढूंढ रही हूँ। लेकिन अब तुम हमारा राज जान चुकी हो, अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकते। ऐसा कह के वो उल्लू गौरी कवि पे लपकते ही है कि चील आ जाती है। उनमें खूब लड़ाई होती है, चील उन्हें अच्छा मारती है और वो दुम दबा के वहां से भाग निकलते हैं। मैं बूढ़ी जरूर हो गई हूँ, लेकिन इतनी कमजोर भी नहीं कि अपने जंगल के पक्षियों की हिफाजत ना कर सकूं। चील माँ जी, आपने मेरी जान बचाई और मैं थी कि आपकी ही जान की दुश्मन बनी थी, मुझे माफ कर दो। मेरी जान की दुश्मन? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? गुत्थी मत उलझाओ, मुझे बताओ क्या बात है। चील माँ जी, मैं चिड़िया से बहुत जलती थी। चिड़िया को रास्ते से हटाने के लिए और आपकी दोस्ती खत्म करवाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। फिर गौरी कवि सारी सच्चाई चील को बता देती है। तुमने बहुत बुरा किया गौरी, तुमने चिड़िया के साथ। तो जब तक चिड़िया तुम्हें माफ नहीं करेगी मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। माँ जी, आप फिक्र ना करें, मैंने ही उसके साथ बुरा किया है तो मैं ही ये मामला सुधारूंगी। मैं चिड़िया को ढूंढ के आपके पास लाऊंगी, जहाँ से भी लाऊं मैं चिड़िया को लाऊंगी। फिर गौरी कवि चिड़िया को ढूंढते ढूंढते उसकी माँ के जंगल की तरफ चली जाती है। रात भी हो जाती है। चिड़िया अपनी माँ के घर के बाहर बैठी होती है। चिड़िया की नज़र गौरी कवि पे पड़ती है, जो रात के समय उसके पास आ रही होती है। चिड़िया खुशी से उछलने लगती है। फिर गौरी सारी सच्चाई चिड़िया को बता देती है। चिड़िया को सुन के बहुत दुख होता है। गौरी बहन, मैं आपको माफ़ कर रही हूँ। मैं आपको अपने लिए और चील माँ जी के लिए माफ़ कर रही हूँ, लेकिन हसद के लिए हमेशा बुरा ही होता है। आपको हसद करना छोड़ देना चाहिए। गौरी कवि खुश हो जाती है और फिर वो दोनों उड़ते उड़ते वापस आ जाते हैं। चिड़िया को देख के चील तो बहुत ही खुश हो जाती है और फिर वो तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।